آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 50,000 کے ہوئی پار۔ تل السلطان کے ہزاروں لوگوں کو آئی ڈی ایف نے کیا بے گھر۔ بھاگتے لوگوں پر فائرنگ کا الزام، کئی کی گئی جان۔ امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف کا دعویٰ، غزہ کی لڑائی حماس کی وجہ سے دوبارہ ہوئی شروع۔ حماس کا آیا جواب، اسرائیل نے سیز فائر ڈیل توڑ دی، نتنیاہو ذمہ دار، اس پر بناؤ پریشر۔ لبنان میں آئی ڈی ایف نے پھر کی ایئر اسٹرائک، موت کا آنکڑا بڑھا۔ یمن کے میزائل حملوں سے اسرائیل کے ہوائی جہازوں کے پنکھ ہوئے جام۔ امریکہ سے بات کرنے کو ایران ہے تیار، لیکن کچھ تبدیلیوں اور کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اور امریکہ کو امید، یوکرین روس میں 20 اپریل تک ہو سکتا ہے سیز فائر، لیکن جلد بازی میں نہیں دکھ رہے پوتن۔ آزاد بول انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج 23 مارچ 2025 ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل پرائم ٹائم شو دنیا بھر کی خبریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، 50,000 کو کراس کر گئی ہے یہ تعداد۔ یہ قتل عام ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا قتل عام تو نہیں، لیکن سب سے بڑے قتل عام کی لسٹ میں شامل ضرور ہو گیا ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ اتنے بڑے لیول پر ہوئے اس قتل عام کو دنیا لائیو دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں اس جنگ کے سب سے بڑے شکار بنے غزہ کے 18,000 سے زیادہ معصوم بچے۔ وہ بچے جو مخمل کی طرح نرم تھے اور کسی پھول کی طرح نازک۔ وہ بچے جو ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوا کرتے تھے، جو اکثر ماں باپ کے ساتھ ٹکڑوں میں ہی ملے۔ حماس کے جو ماتحت غزہ کی ہیلتھ منسٹری آتی ہے، اس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ملٹری آپریشنز کے نتیجے میں غزہ میں 23 مارچ 2025 کو اب تک 50,021 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے 50,000 کا آنکڑا کراس ہو گیا ہے۔ یہ تعداد جنگ سے پہلے غزہ کی 2.3 ملین کی آبادی کا 2.1% حصہ ہے، یعنی غزہ کے ہر 46 میں سے ایک شخص کو قتل کیا جا چکا ہے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق 1,13,274 لوگ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک زخمی ہوئے ہیں۔ یہ فگرز یو این اور دوسری بین الاقوامی اداروں کے نزدیک قابل بھروسہ سمجھی جاتی ہے، مگر اسرائیل ان ڈاٹا کو مسلسل چیلنج کرتا رہا ہے۔ حالانکہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ خبر بہت بھاری دل سے پڑھی ہے اور پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً آپ کا دل بھی رو رہا ہوگا۔ کیا ہم کبھی اپنی آنے والے نسل کو یہ جواب دے پائیں گے کہ ان سے پہلے پیدا ہوئے بچوں کو جب قتل کیا جا رہا تھا تب ہم خاموش کیوں تھے؟ کیا ہم کبھی اس کا جواب دے پائیں گے؟ کیا ہم کبھی اس کا حساب دے پائیں گے؟ ایک بار پھر غزہ کے بے قصور لوگ اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے پیدل بھاگنے پر مجبور ہیں۔ اس بار غزہ کے تل السلطان علاقے کے لوگوں کو اسرائیل نے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھائے بھوکے اور پیاسے نئی پناہ گاہوں کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکل بوڑھے ضعیف لوگوں کے لیے ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ مہینے پہلے بھی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیے گئے تھے۔ اب دوبارہ ایک نئے حکم کے بعد انہیں نیا آسرا ڈھونڈنا ہوگا، مگر کہاں؟ جب ہر طرف صرف تباہی ہے، موت ہے اور بے بسی ہے۔ مظلوم فلسطینی ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ کہتے ہیں، ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا، گھر، روزی، سب کچھ۔ اب ہم کہاں جائیں؟ کوئی جگہ نہیں، صرف موت ہے ہر طرف۔ یہ صرف ایک جگہ کی کہانی نہیں، غزہ کے ہر کونے میں لوگ اپنی زندگیوں کو بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، مگر کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ہر جگہ بم برستے ہیں، ہر جگہ حملہ ہو جاتا ہے۔ کیا انسانیت اس منظر کو دیکھ کر بھی خاموش رہے گی؟ یہ بھاگے جا رہے ہیں لوگ تمام، کسی کو کہیں نہیں جانا ہے مگر بھاگے جا رہے ہیں۔ کوئی کہیں جا بھی نہیں پائے گا مگر ہر کوئی بھاگ رہا ہے، صرف اس آسرے پر کہ ایک دن ان کے پاؤں تھم جائیں گے، وہ رک جائیں گے، پھر سے اپنے گھروں میں بس جائیں گے۔ ان سب کا مجرم کون ہے اور مدد کب آئے گی؟ یہ سوال اب بھی اداس آنکھوں میں بسے ہیں، جن کا جواب کوئی نہیں دیتا۔ انادولو ایجنسی کے رپورٹر کے مطابق غزہ سے ہجرت کرنے والے گھرانے فیملیز
सिर्फ चंद सामान साथ लेकर अपने टेंट्स छोड़कर अल-मवासी की तरफ जा रही थी। ये इलाका खान यूनिस से दीर अल-बलाह तक गजा के साहिल के साथ लगता है। चश्मदीदों ने जो इसके बाद बताया वो और ज़्यादा हिला देने वाला है। उनका कहना है कि इस्राएली फोर्सेस ने उन लोगों पर गोली चलाई जो अपनी रहने की जगह छोड़कर गाड़ियों और तांगों पर जा रहे थे। इसके बाद लोग कई किलोमीटर तक पैदल ही भागने लगे, ये सोचकर कि कहीं गाड़ी में होने पर उन्हें निशाना न बना लिया जाए, गोली न चला दी जाए। गजा के एक मेडिकल सोर्स के मुताबिक कई लोग इस हमले में हलाक और ज़ख्मी हुए, मगर अभी तक एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए हैं। पता ही नहीं चला जो कहीं भाग रहा था वहां पहुंच पाया या रास्ते में ही उसे ढेर कर दिया गया। ये कौन है जो भाग रहे मजलूमों पर गोली चला देता है? क्या इसे कोई रोक सकता है? क्या इसे कोई रोकना चाहता भी है? बढ़ते आगे सर। अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि गजा में दोबारा लड़ाई हमास की वजह से शुरू हुई है क्योंकि उसने एक काबिल कबूल डील को रिजेक्ट कर दिया। विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए कहा, यह सब हमास की वजह से हुआ है। अमेरिका इसराइल के साथ है, हमास ही अग्रेसर है। विटकॉफ के लफ्ज़ हैं, अमेरिका इसराइल के साथ है, हमास ही अग्रेसर है। उनका कहना था कि हमास के पास अपने हथियार डालने और सीज फायर प्लान को मंजूर करने का मौका था, मगर उसने मना कर दिया। विटकॉफ का प्लान ये था कि रमज़ान और पास ओवर तक, पास ओवर यहूदियों का त्यौहार है, विटकॉफ का प्लान था कि रमज़ान और पास ओवर तक सीज फायर को बढ़ा दिया जाए ताकि मज़ीद नेगोशिएशंस हो सके। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि इसराइल ने जनवरी में हुई सीज फायर डील की शर्तों पर अमल नहीं किया। हमास के मीडिया एडवाइज़र ताहिर अल-नोनो ने कहा कि हमने हर कोशिश को अच्छी तरीके से और अच्छी नीयत से निभाया और उसका जवाब दिया, मगर नेतन्याहू ने डील तोड़ दी। प्रेशर नेतन्याहू पर होना चाहिए, हमास पर नहीं। ये हमास का विटकॉफ से कहना है। बढ़ते हैं आगे सर। कुछ खबरें जल्दी ले लेते हैं जिनकी हेडलाइन से सब कुछ बयां कर देगी। लेबनान ने कहा है कि एक और शख्स की मौत हुई है इसराइल की ताज़ा एयर स्ट्राइक्स में। साउथ लेबनान में लगातार इसराइल में जो है बम गोले गिरा रहा है, और कल जब रॉकेट अटैक हुआ था लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह ने जिससे इनकार किया है, उसके बाद से इसराइल ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। लेबनान की हुकूमत कहती है माकूल जवाब देंगे, लेकिन फ़िलहाल वो जवाब लफ्ज़ों में दे रही है, हथगोलों से नहीं। 7 लोग कल मरे थे, आज एक शख्स की और मौत हो गई। लेबनान में बढ़कर यह आंकड़ा 8 हो गया। एयर ट्रैफिक जाम हो गया बेन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल पर, क्योंकि यमन की तरफ से मिसाइल ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। आज सुबह मिसाइल दागी गई तो वहां पर हवाई जहाज़ न टेक ऑफ कर सके और जो हवा में थे वो लैंड न कर सके। यमन के हाउथीज़ ने कहा है कि हम बेन गुरियन एयरपोर्ट को लगातार हिट करते रहेंगे, ये सेफ नहीं है। जब तक गजा पर से सीज नहीं हटती या गजा में रसद राशन ये सब भेजा नहीं जाता, तब तक इसराइल में कोई भी शख्स ये समझ ले कि वो सेफ नहीं है। लगातार सायरन बचे, हज़ारों लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए दिखे, इसकी तस्वीरें आई सामने। लेकिन ऐसा नहीं कि यमन हमले कर रहा है, यमन पर भी तो हमले हो रहे हैं। यमन पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, लगातार ये पिछले हफ्ते से जारी हैं, और हुदैदा और मारिब में ताज़ा एयर स्ट्राइक्स की हैं। जो लोग दिन भर के बाद खबरें देख रहे हैं उन्हें खबर देना ज़रूरी थी, वहाँ तबाही हुई है। यकीन मानिए यमन से भी अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई कि कितने लोग मारे गए। ईरान अमेरिका से बात करने को तैयार है, लेकिन कुछ शर्तों और तब्दीलियों के साथ। सर्टेन थिंग्स नीड टू चेंज टू इनेबल टॉक्स विद यूएस। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि कई चीज़ों में तब्दीली लाना ज़रूरी है, नज़रिए में भी और शर्तों में भी, तभी जाकर अमेरिका से बात हो पाएगी। हम इतने ज़िद्दी नहीं, नालायक नहीं कि हम किसी से बात करने से इनकार कर दें, हाँ, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं करेंगे। और 2015 में जिस डील को कैंसिल कर दिया गया उसके बारे में भी मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा। 2018 में जो डील जो है सैंक्शंस जो है वो लगा दिए गए, 2015 की डील को वो कर दिया गया, गड़बड़ ख़त्म कर दिया। उस न्यूक्लियर डील का बेस तो अब भी वही रह सकता है जिसे ट्रंप ने आते ही ख़त्म कर दिया था ईरान के साथ, लेकिन वो डील अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्रेस के डेवलपमेंट के मामले में ईरान बहुत आगे बढ़ चुका है, अब्बास अरागची ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा टोटल सिविलियन यूज़ के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम इसे बंद नहीं करेंगे। आपको बात करनी है
तो उस फ्रेमवर्क पर भी करिएगा जो न्यूक्लियर डील का था, और उससे आगे बढ़कर अब हमारे एनरिचमेंट को देखते हुए कोई एक डील करिए, तब जाकर हम बात कर लेंगे आपसे। यूक्रेन और अमेरिका जो है बातचीत में है लगातार, और रूस के साथ यूक्रेन का सीज फायर कराने की कोशिशें भी हैं। अमेरिका को ये उम्मीद बंधी है, यूएस होप्स फॉर यूक्रेन पीस डील बाय अप्रैल 20 एज पुतिन सीम्स इन नो हरी। अमेरिका को ये उम्मीद है, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उम्मीद है कि यूक्रेन रूस के साथ इस 20 अप्रैल तक एक पीस डील, एक अमन मुआहदा साइन कर लेगा। जबकि दूसरी तरफ ये हेडलाइन कहते हैं कि पुतिन सब कुछ तोड़ मोल रहे हैं, पुतिन जल्दी के मूड में नहीं है। यूक्रेन इस वक्त अमेरिका के असर में है, लेकिन पुतिन नहीं है। पुतिन जब तक अपना फ़ायदा होता हुआ नहीं देखेंगे वो कोई डील नहीं करेंगे। इसी से मुतालिक एक और ख़बर है, यूक्रेन और अमेरिका की टीम्स जो हैं वो जल्द ही सऊदी अरेबिया में फिर से बातचीत के लिए जमा होने वाली हैं, और लगता है कि उन्हें कि जल्द ही रशिया से हम जंग ख़त्म कर सकेंगे। यूक्रेन भी यही चाहता है, क्योंकि मदद के रास्ते रुक रहे हैं, अमेरिका मदद रोक रहा है, तो यूक्रेन को तो थोड़ा घुटनों पर आना पड़ेगा, और ये घुटनों पर ही लाने के लिए किया गया था। लेकिन कमाल की बात है, सऊदी अरब में एक जंग को रुकवाने की बात हो रही है। क्या गज़ा और इसराइल की जंग रुकवाने की भी बात हो सकती थी अगर सऊदी अरब प्रेशर डालता, क्योंकि ताल्लुकात तो इसराइल को भी सऊदी अरब से वसी करने हैं, प्रेशर डाला जा सकता था। खैर, देखते हैं आगे। एक और ख़बर इसमें यह है कि क्रेमलिन एक्सपेक्ट्स डिफ़िकल्ट नेगोशिएशंस इन सऊदी अरेबिया ओवर यूक्रेन, कि क्रेमलिन को, रूस को ये लगता है कि जो सऊदी अरब में जो बातचीत होने वाली है यूक्रेन को लेकर, सीज़ फायर को लेकर, वहाँ नेगोशिएशंस बड़े टफ होंगे, बड़े डिफ़िकल्ट होंगे, बड़े मुश्किल होंगे। फ़िलहाल पेपर वर्क अभी किया जा रहा है। एक और हेडलाइन ये है सूडान से, जहाँ पर बताया गया है कि पैरामिलिट्री फोर्स जो कि RSF है, उसने शेलिंग की है, गोलीबारी की है ओमदुरमान शहर पर, जहां पर सूडान की आर्मी ने कंट्रोल हासिल कर लिया। वहां पर गोले दागे, उस पर बमबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, इनमें 2 बच्चे शामिल हैं। कहीं भी आर्मी, कहीं भी बागी लड़ें, बच्चे ही मारे जाते हैं। हाँ, अमेरिका ने तालिबान के कुछ सीनियर ऑफिशियल से बैन हटा लिया, बाउंटी हटा ली है, इनाम हटा लिया है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी उसमें शामिल है, जो अमेरिका की टॉप लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन इनके ऊपर से क्यों नाम हटाया पता नहीं। फ़िलहाल सिराजुद्दीन हक्कानी के अलावा बहुत से लोग हैं। अब्दुल अजीज़ हक्कानी है, उसमें याहिया हक्कानी है, तीनों 2 सगे भाई, एक चचेरे भाई हैं। बाकी और लोग हैं जिनके ऊपर से अमेरिका ने इनाम हटा लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। शो देर से आ रहे हैं, रमज़ान चल रहे हैं, मुझे पता है आप लोग इबादत में, तरावी में होते हैं। मैं भी थोड़ा सा कहीं इधर उधर गड़बड़ में मसरूफ़ हूँ, नमाज के अलावा भी, क्योंकि नींद का बड़ा मसला है, तो माफ़ कर दें। सलामत रहें।